நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவை நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்கலாம். This is a situation at the पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में बातचीत. घबराए स्वर में, मोहन साहब गजब हो गया. घबराते क्यों हो, शांति से कहिए क्या हुआ. बस में जाते हुए मेरा पर्स खो गया. कैसे, देखिए मेरी जेब की हालत. पुलिस स्टेशन में बातचीत. कॉन्वर्सेशन एट द पुलिस स्टेशन. घबराए हुए स्वर में, फियर, स्कैर्ड. Scared tone. Swar is tone. Mohan Saab is the name of the inspector. Mohan Saab, gazab ho gaya. Strange thing has happened. Gazab means strange. Gazab ho gaya. Mohan Saab, the police inspector is saying, घबराते क्यों हो? Why are you scared? घबराना means scared. Why are you scared? घबराते क्यों हो? शांति से कहिए. Peacefully. Say calm. Be calm. So, be calm. शांति से कहिए. Be calm and say what happened. क्या हुआ? Be calm and say what happened. बस में जाते हुए मेरा पर्स खो गया. While traveling in the bus, जाते हुए means while traveling. हुए, while you are traveling is जाते हुए. मेरा पर्स, my purse. खोना is to get lost. So my purse is lost while traveling in the bus. How? कैसे? How? देखिए मेरी जेब की हालत. देखिए, सी मेरी जेब, पॉकेट. हालत, state. See the state of my pocket. You can imagine what a person who is showing his pocket looks like. His pocket will be out of his pant and there will be cut mark on that showing that his purse is missing. अच्छा बताइए, पर्स में कितने रुपए थे? वेतन के 4000 रुपए 100 के नोट में थे. अच्छा, पर्स का रंग कौन सा था? भूरा. उसमें मेरा पता भी लिखा था. आप रिपोर्ट लिख कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे. अच्छा बताइए कि पर्स में कितने रुपए थे? ओके. टेल मी हाउ मच मनी डिड यू हैव इन योर पर्स. बताइए इस टेल मी. बताइए फॉर अ पर्सन विथ रिस्पेक्ट, फॉर अ पर्सन विदाउट रिस्पेक्ट, फॉर यंगर इन एज यू हैव टू से बताओ पर्स में कितने रुपए थे. वेतन के 4000 रुपए. वेतन मीन्स सैलरी. वेतन के 4000, 4000. वेतन के 4000 रुपए 100 के नोट में थे. दे वर इन हंड्रेड्स. द नोट्स वर इन हंड्रेड्स. इन हंड्रेड्स. अच्छा, पर्स का रंग कौन सा था? पर्स का रंग, रंग मीन्स कलर. कौन सा था? Here you have to use the word tha because the purse is already lost. Once it is lost, it becomes past tense. Once he will find it, then it will come back to present. Then you will say है. भूरा रंग, उस पे मेरा पता भी लिखा था. भूरा is brown. भूरा. He wanted to say भूरा रंग.
Rang means color, so bhura rang. But he has just said bhura. It means it is understood that brown is the color of the purse, so he has not written. Understood है, that is understood. उसमें मेरा पता भी लिखा था. पता here is address. His address is written on his purse. आप रिपोर्ट लिख कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे. आप you with respect, report is report, लिख कर is write, दीजिए give. When you want to give respect to somebody who is older in age and experience, you will say दीजिए. For a young boy or a small child, you will say तुम रिपोर्ट लिख कर दो, हम कोशिश करेंगे, we will try. मेहनत की कमाई मोहन साहब, मेहनत की कमाई है मोहन साहब, चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे. कुछ अंतराल के बाद, सलाम साहब, पुराना चोर पकड़ा गया है, वो भी रंगे हाथ, खुशी से चिल्लाकर, यही मेरा पर्स है, देखिए कि मेरे रुपए पर्स में है या नहीं. मेहनत की कमाई है मोहन साहब, I have worked. मेहनत is hard work. Since it is salary, he says it is a hard work. मेहनत की कमाई है मोहन साहब, चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे. चिंता is worry. Don't worry. चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे. चिंता is worry. मत is no and don't. So you can say, you can write mat for no also and don't also. हम पूरी कोशिश करेंगे, we will try our best. पूरा is full and पूरी means we will do our best. कुछ अंतराल के बाद, अंतराल is an interval or after some time. सलाम साहब, पुराना चोर पकड़ा गया है, वो भी रंगे हाथ. सलाम is सलाम, salute. पुराना is old, चोर is thief, पकड़ा गया is caught. वो भी means that too. That too. रंगे हाथ means while he was doing that, he has been caught in activity. So while he was stealing, he has been caught. खुशी से चिल्लाकर, खुशी is happiness, चिल्लाकर is shout. खुशी से चिल्लाकर, यही मेरा पर्स है, मेरा is mine, purse is purse. So he is very happy, he has found his purse. देखिए कि मेरे रुपए पर्स में हैं या नहीं. Just check if my money is there or not. देखिए कि मेरे रुपए पर्स में हैं या नहीं. देखिए इस C, please check, he is saying whether my money is there in the purse or no. पर्स खोलकर देखते हुए, आपके रुपए जैसे के तैसे हैं. अच्छा तो मेरा पर्स मुझे दे दीजिए. अभी नहीं, फैसला होने तक आपका पर्स हमारे पास ही रहेगा.
ठीक है, तो मैं जाऊं? जी, जब आपको गवाही का समन आएगा तो जरूर आना, पक्का। पर्स खोलकर, खोलना इज टू ओपन, खोलकर, देखते हुए मीन ऑन सीइंग। सो पर्स खोलकर देखते हुए, आपके रुपए जैसे के तैसे हैं, आपके रुपए, आपके इज योर्स, मनी इज जैसे का तैसा इज इन टैक्ट एज यू हैड केप्ट इट, इट इज लाइक दैट। अच्छा, तो मेरा पर्स मुझे दे दीजिए। ओके, देन गिव माई पर्स टू मी। अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी नहीं मीन नाउ, अभी इज नाउ एंड नहीं इज नो, नॉट नाउ, अभी नहीं, फैसला होने तक, when it let it be decided, और जजमेंट, फैसला होने तक, till it has been decided, then till then your purse will be with us, हमारे पास, will be with us only। ठीक है, तो मैं जाऊं? ओके, shall I go? जी, he wants to say जी, आप जाइए, but he says जी, ओके। जब आपकी गवाही का समन आएगा तो जरूर आना। When you are required, when you get the summon requesting you to come and identify your purse, then you should definitely come। So जी, जब आपकी गवाही, गवाही is साक्षी और witness, when you have to come and identify your purse, please come। पक्का, पक्का is definitely, yes I will come। Oh yaar, I have not cut the net on my phone, it went ting ting ting। दवाखाने में बातचीत। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे कल रात से बुखार है, सारे शरीर में दर्द हो रहा है। मुंह खोलिए, क्या आपके गले में भी दर्द है? कुछ दिनों से मेरा गला खराब है। ऐसी बात है, जरा जीभ दिखाइए। दवाखाना इज अ क्लिनिक, अ डॉक्टर्स क्लिनिक। इन हिंदी, doctor's clinic is a davakhana because it is a small place where a doctor is sitting and he is giving you medicines also. But for cold, cough, fever, nobody goes to a hospital, you go to a clinic to meet a doctor, so that is why this is clinic। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे कल रात से बुखार है, from yesterday night, कल is yesterday night, बुखार, I am having fever from yesterday night। सारे शरीर में दर्द हो रहा है, सारा means full body, शरीर is body, दर्द is pain, so he is having fever since yesterday night and he is having full body pain also। Doctor is asking him, मुंह खोलिए, open your mouth, mouth, मुंह is mouth, खोलिए is open, मुंह खोलिए, क्या आपके गले में भी दर्द है? So after the doctor has checked and he is asking him, क्या आपके गले में, गला is throat, is your throat paining? कुछ दिनों से मेरा गला खराब है, फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, कुछ इज फ्यू, दिनों से इज प्लूरल ऑफ दिन, दिन इज वन एंड दिनों इज मोर देन वन, सो फ्रॉम फ्यू डेज
My gala, as we mentioned up there, it is throat, is not okay, or he is having pain in his throat, so it is kharab. Kharab means not working actually, but here in this context it means that my throat is paining, my throat is not good. ऐसी बात है, is it? He wants to say, is it? As baat over here means, are you telling the truth? It means that, but in this context he will say, ऐसी बात है, really is not okay. Is it or really? जरा जीभ दिखाइए. जीभ is tongue. दिखाइए is to see. So जरा means a bit. He means a bit, but you have to show your tongue. You cannot show a bit of your tongue. It is just a way of talking. Even if you don't write zara and just say jeep dikhaiye, it means let me see your tongue and whether your tongue is also infected. मुझे खांसी और जुखाम है, सर दर्द भी है, रात भर नींद नहीं आई. आपको भूख लगती है? भूख और प्यास नहीं लगती है. आपको हल्का फ्लू लगता है, उसकी दवा लीजिए. हल्का खाना खाइए, तली चीज़ें मत खाना या नहीं खाना. यू कैन यूज बोथ द वर्ड्स मत और नहीं. तली चीज़ें मत खाना, बोथ मीन्स नो. मुझे खांसी और जुकाम है. खांसी इज कॉफ, जुकाम मीन्स कोल्ड. So he has got cough and cold. सर दर्द है, head pain. सर दर्द भी है. रात भर नींद नहीं आई. रात भर full night. नींद is sleep नहीं आई. So he did not sleep the whole night. आपको भूख लगती है? भूख is hunger. आपको भूख लगती है? डू यू फील लाइक ईटिंग फूड और समथिंग? भूख और प्यास नहीं लगते. सो आई डोंट लाइक टू ईट. और आई डोंट फील थर्स्ट ऑल्सो. प्यास इज थर्स्ट. सो भूख मीन्स डजंट लाइक, भूख मीन्स टू ईट, हंगर, एंड थर्स्ट इज प्यास. So he doesn't feel like eating something or drinking anything. आपको हल्का फ्लू लगता है. हल्का is light. Flu is flu. लगता है means the doctor feels that he has got a light flu. लगता है means feel. उसकी दवा लीजिए. Take medicine for that. दवा is medicine. दवा लीजिए, टेक मेडिसिन फॉर दैट. हल्का खाना खाइए, तली चीज़ें मत खाइए या नहीं खाना है. सो हल्का इज लाइट, फूड, खाना इज फूड. सो टेक लाइट फूड. तली इज फ्राइड. फ्राइड चीज़ें मीन्स आर्टिकल्स, स्मॉल थिंग्स, और या यू कैन राइट थिंग्स ऑल्सो. Don't eat fried things. नहीं खाना. खाना is two things over here. Khana also means food and khana also means to eat. So in this you have to know the context in which it is being said. This khana is food. Halka khana is food, and that halka, this khana over here means that don't eat fried food. आपकी फीस कितनी है? 50 रुपये. ये लीजिए, थैंक यू. फीस यानी डॉक्टर जो चार्ज करता है उसको फीस कहते हैं. तो डॉक्टर अपनी सर्विस के लिए जो चार्ज करता है उसको फीस कहते हैं. तो पेशेंट इज आस्किंग व्हाट इज योर फीस? कितनी मीन्स हाउ मच. आपकी इज यू और योर.
आप इज यू एंड की इज योर। सो आपकी फीस कितनी है? 50 रुपये, 50 रुपीज़। ये लीजिए, थैंक यू। लीजिए इज टू टेक, टेक दिस, ये इज दिस, सो टेक दिस, ये लीजिए, थैंक यू। समुद्र तट की बातचीत। तुम्हें मालूम है कि मरीना समुद्र तट दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है, इसीलिए सुंदर है। और पहला कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का रियो डी जेनेरो समुद्र तट। अच्छा, उसे कैसे सुंदर कहते हैं? समुद्र, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस कॉन्वर्सेशन, इट इज बीच। बीच पे कॉन्वर्सेशन। तुम्हें मालूम है, डू यू नो, this over here, this key is that, do you know that? Marina, samudra tat. Samudra tat, as we have seen, is beach. Marina is marina. दुनिया का, दुनिया is world का दूसरा लंबा, दूसरा is second, second सबसे लंबा, दूसरा, that means it is long, it is the second longest, सबसे in the whole world, सबसे means in the whole world। सबसे लंबा, लंबा is long, बीच, बीच है इसीलिए सुंदर है, so इसीलिए is so, सुंदर is beautiful। So because it is the second longest, so we take great pride in it, that is why this beach is very beautiful। और पहला कौन सा है? And first one, which is the first one? कौन is which? और पहला वाला कौन सा? Which is the first longest beach? दक्षिण अमेरिका का रियो डी जेनेरो समुद्र तट। दक्षिण इज साउथ, अमेरिका इज अमेरिका का रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो बीच इज द लॉन्गेस्ट बीच। अच्छा, उसे कैसे सुंदर कहते हैं? अच्छा, is it okay? उसे कैसे, how will you call that beautiful? He is saying, so he is asking, okay, if it is the longest, how does that become beautiful? वही लंबा समुद्र तट, हमेशा लंबा समुद्र तट ही देखने में सुंदर लगता है। मरीना को ही देख लो, कितना लंबा है। हर जगह के समुद्र तट इतने लंबे नहीं होते, हाँ अन्य जगह के छोटे होते हैं, इतने लंबे और चौड़े नहीं होते। यहाँ बालू कितनी सफेद है। वही लंबा समुद्र तट, दैट लंबा इज लॉन्ग समुद्र तट बीच, हमेशा ऑलवेज लंबे समुद्र तट ही देखने में लंबा, एज वी हैव डन हियर, समुद्र तट बीच ही देखने में सुंदर लगता है। सो व्हेन द बीच इज लॉन्ग, देन यू लाइक टू सी लॉन्ग बीचेस। मरीना को ही देख लो, सी मरीना, मरीना ही मतलब ही सेइंग हियर एज एन एग्जाम्पल, टेक मरीना एज एन एग्जाम्पल। कितना लंबा है, कितना मीन्स हाउ मच, how much long. He is very proud of his long beach, so he says he really likes to see the long beaches. हाँ, हर जगह के समुद्र इतने लंबे नहीं होते, हर जगह, every place, every beach is not as long and as broad as Marina or Rio. हाँ,
अन्य जगह के छोटे होते हैं. Yes, अन्य means other. जगह is places. So he is saying other places, that he means to say beaches of other places के छोटे होते हैं. They are small. तो small छोटा is the opposite of लंबा और long. इतने लंबे और चौड़े नहीं होते. They are not so long and broad beaches. चौड़ा is broad. यहाँ बालू कितनी सफेद है? बालू मीन्स रेत और it means sand. Balu is a word used mostly in the east side of India, like West Bengal and those type of places, Orissa. They call sand as balu, whereas on the western side sand is called ret. So what the sand that you have on beaches is called ret, balu, and in English it is called sand. Safed is white. So यहाँ बालू कितनी सफेद है? The sand is so bright and white is what he is trying to say. लहरों को देखिए, कितनी बड़ी लहरें आती हैं. हाँ, वे बहुत सुंदर हैं. पानी के पास बैठे नहीं, अचानक बड़ी लहर आई तो हम भीग जाएंगे. तब थोड़ी दूर बैठेंगे. लहरों is plural of wave. लहर is wave and लहरों is waves. So he says see the waves. कितनी बड़ी, so big. They are coming so big. Ana is to come and आती है is it is coming. हाँ, वे बहुत सुंदर हैं. Yes, they are very beautiful. पानी के पास बैठे. He is asking a question. Can we go and sit near the water? नहीं. बैठना is sit. नहीं. अचानक means suddenly. बड़ी is big. Wave. Suddenly if there is a big wave, if it comes towards us, we will get wet. भीगना is wet. You can also say भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे. They both mean to get wet. And gala is throat and gila is to get wet. Gile is both of us will get wet. हो जाएंगे means it will happen. तब थोड़ी दूर बैठेंगे. Then, तब is then. थोड़ा is little. Far. दूर is far. बैठेंगे is to sit. So then we will sit at a distance. यहाँ एक चीज ऐड करनी है. लहरों को देखिए, कितनी बड़ी लहरें आती हैं. लहरें इज प्लूरल. अब नाउ लहरें इज फेमिनाइन जेंडर. सो आती है. बॉल होगा तो बॉल आता है. बॉल इज अ मैस्कुलाइन जेंडर, तो बॉल आता है. देखो वहां कुछ मूर्तियां भी हैं. गांधी जी, भारतीयार, कन्नगी और मजदूरों का विजय स्मारक. यहाँ से लाइट हाउस दिखता है, दिखाई पड़ता है. वह देखो, लेकिन सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखता है. देखो वहाँ कुछ मूर्तियां भी हैं. वे हैं
गांधी जी, भारतीयार, कन्नगी और मजदूरों का विजय स्मारक। देखो मीन्स सी देयर, देखो, सी देयर, वहां कुछ, देयर कुछ, सम, मूर्तियां, स्टैचूज, भी, दे आर देयर, दे आर ऑल्सो देयर। वे हैं गांधी जी, भारतीयार, कन्नगी और मजदूरों का विजय स्मारक। सी, इफ यू आर स्टैंडिंग नियर द स्टैचूज यू कैन ऑल्सो से इट दिस वे, ये है गांधी जी, फिर भारतीयार, उसके बाद कन्नगी और उसके बाद मजदूरों का विजय स्मारक। इट मीन्स दैट यू आर सेइंग दिस इज गांधी जी, देन यू हैव भारतीयार, आफ्टर दैट कन्नगी एंड देन मजदूरों का विजय स्मारक। एवरीबडी नोज गांधी जी, भारतीयार, कन्नगी। मजदूर मीन्स लेबरर्स, विजय मीन्स विक्ट्री, स्मारक मीन्स मेमोरियल। So it is a memorial of the laborers. Then you come to, यहाँ से लाइट हाउस दिखता है। He is asking a question. Can you see the lighthouse from here? यहाँ से, from here, लाइट हाउस दिखता है। Can you see? दिखाई पड़ता है। When you say दिखाई means I am able to see. पढ़ना is able to see. दिखाई पड़ता है, able to see. वह देखो, लेकिन सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखता है। See there. वह is see there. You can also say, for a young child you can say वो देख. So वो देख, लेकिन सिर्फ, but सिर्फ is only, ऊपरी is upper, हिस्सा is part, ऊपरी हिस्सा ही दिखता है, लेकिन but we can see only the topmost part of the lighthouse. अब तक रोशनी नहीं हुई है, अंधेरा होने के बाद ही लाइट हाउस की बत्ती जलेगी। समुद्र में कुछ दूरी पर जहाज खड़े हैं, वे बंदरगाह में पहुंचने के इंतजार में हैं। यहाँ से जहाज दुनिया भर में जाते हैं क्या? अब तक, टिल नाउ, अब तक, टिल नाउ, रोशनी इज ब्राइटनेस, नहीं हुई है, अब तक रोशनी नहीं हुई। दैट मीन्स दैट इट हैज नॉट, दे हैव नॉट लिट द लाइट हाउस येट। अंधेरा इज डार्कनेस, अंधेरा होने के बाद, आफ्टर इट बिकम्स डार्क, अंधेरा होने के बाद ही लाइट हाउस की बत्ती जलेगी। So once it is dark, then the batti is light. Jalegi means to burn. समुद्र में कुछ दूरी पर जहाज खड़े हैं। समुद्र means sea. समुद्र तट is beach. कुछ दूरी means at some distance. दूर means far, so कुछ दूरी means at some distance. जहाज, जहाज here is ship. In Hindi, an aeroplane is called a हवाई जहाज. हवा is air and जहाज is aeroplane. But in the sea, जहाज या समुद्री जहाज, if they will say, that means that a ship. Samudra is water and a vehicle that goes on water. So samudri jahaz. So in this context, they have written only jahaz. Jahaz means ship.
खड़े हैं, खड़े इज वेटिंग। वे बंदरगाह पर पहुंचने के इंतजार में हैं। वे, you can say वे, you can say वो, if you are talking about only one ship. बंदरगाह is harbor. पहुंचने का to reach. इंतजार wait. So those ships are waiting to go to reach the harbor. यहाँ से जहाज दुनिया भर में जाते हैं क्या? यहाँ से मीन्स फ्रॉम हियर द शिप्स, जहाज इज शिप, दुनिया इज वर्ल्ड ओवर, में जाते हैं। डू द शिप्स गो वर्ल्ड ओवर फ्रॉम हियर? ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन। हाँ, लेकिन वे ज्यादातर माल ढोकर चलने वाले जहाज होते हैं। देरी हो रही है, घर चले? चलो चले। हाँ, लेकिन बट ज्यादातर ऑन मोस्ट ओकेजन्स और मोस्टली माल इज सामान और थिंग्स, आर्टिकल्स। ढोकर मीन्स टू फिल एंड कैरी। चलने वाले, चलने वाले मतलब मूविंग वंस, जहाज होते हैं। So here he is trying to say mostly the ships that travel are cargo ships. Mal is cargo. Cargo that carry a lot of cargo. Dhokar means normally it is said to carry on my back, on a back. That is where it is used mostly. But these ships, for these ships also it is used as carrying cargo. So cargo dhokar, that is carrying it. चलने वाले, those are cargo ships, you know. जहाज is ship होते हैं. So mostly these ships are cargo ships. The cargo that the ships carry. देरी हो रही है. We are getting late. घर चलें? Shall we go home? You can, this is actually a shortened form. You can say क्या हम घर चलें? तो क्या is understood because it is a question. घर चलें? Shall we go home? चलो चलें. Come, let's go. चलो is come. Let's go. चले is let's go.